Morning, students. How are you? Are you fine? Now, I am going to teach you fundamental forces of nature of your first chapter of class 11, physical world. Okay? What is fundamental forces of nature? There are four fundamental forces in nature. These forces are independent to each other, hence it is called fundamental forces. There are four fundamental forces of nature. Look here. Fundamental. Our topic is fundamental forces in nature. Fundamental forces. Okay. Fundamental forces. That means the forces which are independent to each other is called fundamental forces. In the universe or nature, there are four fundamental forces. Like one, gravitational force. Gravitational force. This is the first fundamental force of the nature. Okay? Are you familiar to gravitational force? Number two, electromagnetic force. Electromagnetic force. Okay. This is the second fundamental force. According to its name, electromagnetic force. That means in this force, both electric force and magnetic forces are included. Number three, weak nuclear force. Weak nuclear force. Okay? Weak nuclear force is a special type of force which is effective only on nuclear level. That means 1.2 into 10 to the power minus 15 meter. Okay? And last or fourth number is a strong nuclear force. A strong nuclear force. Okay? These are the four forces which are assumed as fundamental forces. In these forces, above two, that means gravitational force and electromagnetic forces are come from macroscopic world. Macroscopic वर्ल्ड. ओके, यह मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से ये फोर्स आता है. कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. These two forces are comes from electromagnetic force. Okay, while remaining two forces, that means weak nuclear force and a strong nuclear force, are come from microscopic world. Microscopic world. Okay, that means these are the coming
from the classical physics, while these two forces are commonly come from quantum mechanics. Okay, now I am going to discuss about gravitational force. डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स से तुम लोग शायद काफी परिचित हो। 9th क्लास में तुमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है ना। यह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। यह देखो तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, यह फोर्स जो होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज of the universe. The force acting between two bodies of the universe is called gravitational force. First of all, it comes in action by Newton's law of gravitation. जबकि न्यूटन ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए इनवर्स स्क्वायर का कंसेप्ट केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन से प्राप्त किया था। ठीक, अब यह क्या हुआ कि दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स है। देखो तो यहां मैं दो बॉडी कोई यूनिवर्स का ले रहा हूं। ओके, ये बॉडी का सेंटर यहां तक है, इसका सेंटर मैं O और इसका सेंटर O डैश माना। यदि इसके सेंटर से इसके सेंटर की बीच का डिस्टेंस R है और इस पहले बॉडी का मास m1 है और दूसरे बॉडी का मास m2 है, तो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है कि every particle of the universe is attracted by a force. This force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. यानी इसको इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि यदि इस पर F न्यूटन का फोर्स लगे तो क्या होगा कि इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, यह देख सकते हो। यह तुम देखोगे कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस दोनों ही बॉडी के मास के। दैट इंप्लाइज यह क्या हो जाएगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 इंटू m2। ओके, और क्या हो जाएगा, F वेरिएजेस हो जाएगा 1/r²। अब इस दोनों को कंबाइन कर दिया गया, जो हमारे फिजिक्स का मेन क्वेस्ट है यूनिफिकेशन। यदि हम इसको कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग वी हैव, यदि हमने इसको कंबाइन किया तो यह क्या हो गया, F वेरिएजेस m1 इंटू m2/r²। ओके, वेरिएजेस का साइन हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज F बराबर यह इक्वल टू Gm1 m2/r²। यह क्या हो गया, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हुआ। और इसी से हमें क्या प्राप्त होता है, इसी से हमें जो है प्राप्त होता है ग्रेविटेशनल फोर्स।
ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स से हम क्या करेंगे कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तुम लोग लिखोगे या क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज हो सकता है। सबसे पहला नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। संसार का सबसे कमजोर फोर्स है, फिर भी यह पूरे अर्थ को स्टैटिक पोजीशन में रखे हुए है, या पूरे सैटेलाइट को कहो वह भी स्टैटिक पोजीशन में रखे हुए है। अर्थ अपने ऑर्बिट पर चारों तरफ घूम रही होती है, इसके लिए आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसे अर्थ सन के चारों तरफ अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते रहती है। यह जो है लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसका डिस्टेंस, इसका रेंज जो है पूरा यूनिवर्स है। यह जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी इसके पाथ में कोई अन्य बॉडी भी रहे, दो बॉडी के बीच में कोई अन्य बॉडी आ जाए तो उससे इस फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। दैट मीन्स इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स दैट मीन्स it is effective from the center of one body to the other body. Like if we assumed a body earth and a satellite which is located approx 36,000 kilometer above in the sky, in the orbit of the earth, then we have assumed distance between center of the earth to the center of the satellite. ओके, यह सेंट्रल फोर्स है। और सबसे इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जानते हो क्या है कि यह केवल एट्रैक्टिव फोर्स है। यह एट्रैक्टिव फोर्स है, यह रिपल्सिव नहीं है। देखो, इसका बहुत सारा, हम लोग जब कोई चीज फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वह जो है समाज के लिए वेलफेयर का काम करता है। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानेंगे कि क्या हुआ। जैसे इसका प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसका क्या है। सबसे पहला तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, अर्थ रिमेन्स इन स्टैटिक पोजीशन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ डिफरेंट हेवनली बॉडीज। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन क्या है कि रिवर्स आर फ्लोइंग ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्लैंकेट ऑफ एयर इज डेंसर nearer part of the surface of the earth due to effect of gravitational force. These are the some application which is related to gravitational force. applications का मतलब इसका यूज, क्यों हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स हुआ और इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, जय हिंद।